مراد کمرے میں داخل ہوا اور اشتعال بھرے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اس 16 سالہ لڑکی کی طرف بڑھا جو کہ اب سے کچھ دیر قبل اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، تمہارا میری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اسے بیڈ سے کھینچ کر اتارتے ہوئے دھاڑا تو دانین کی روح تک لرز گئی، پھر وہ اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو دانین صوفے پر سہمی سی بیٹھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے پاس آیا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ گیٹ آؤٹ مائی روم، وہ چنگھاڑ کر بولا، پھر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا تو سامنے دراب افندی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مراد، تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ایسے کیسے بات کر سکتے ہو تم اس بچی سے؟ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم شاید بھول رہے ہو کہ تم نے پوری رضامندی سے ایجاب و قبول کیا تھا۔ دراب افندی نے سخت لہجے میں کہا، میں نے ایجاب و قبول نہیں کیا تھا، مجھ سے زبردستی کروایا گیا تھا، ایموشنل بلیک میل کیا گیا تھا۔ اپنی مرتی بہن کا آپ کو خیال تھا، مگر آپ کے بیٹے کا کیا جو کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ آپ نے میرا دل اجاڑ دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی۔ وہ غصے سے بولا، میں نے تمہارے لیے وہ فیصلہ کیا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم اس گھر سے جا سکتے ہو اور جا کر تم اسے اپنا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دراب افندی نے سرد لہجے میں کہا تو مراد نے کھا جانے والی نگاہوں سے دانین کو دیکھا جو کہ سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں کبھی بھی زندگی میں نہیں اپناؤں گا کیونکہ اس کی ماں کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اپنی ماں کا پیار نہیں مل سکا، وہ تب کر بولا۔ پھر وہ غصے سے کمرے میں واپس پلٹا اور اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دراب افندی نے لب بھینچ کر دانین کو دیکھا جو کہ رو دینے کے قریب تھی۔ آئیے بیٹا میرے ساتھ، مجھے آپ سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں، دراب افندی نے کہا اور اسے لے کر اسٹڈی روم میں آ گئے۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے کہا تو دانیہ چپ چاپ چیئر پر بیٹھ گئی۔ برسوں پہلے تمہاری ماں یعنی میری بہن نے اپنی پسند کی شادی کی تھی غیر برادری میں، جس کی وجہ سے سب نے ان سے ناتا توڑ لیا تھا۔ میں جب امریکہ سے واپس آیا تو بہت ڈھونڈا مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ بہت جگہ پہ رابطے کیے اور یہاں تک کہ اپنے انسپیکٹر دوست کے ذریعے تمہارے بابا کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہی تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کلو نہیں مل سکا، اور میرے بابا یعنی آپ کے نانا جی پھر ان کی یاد میں تڑپنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غم میں وہ دنیا سے چل دیے۔ پھر میں اپنی لائف میں بزی ہوتا چلا گیا، لیکن برسوں کے بعد جسٹ ایک ہفتے پہلے جب میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا تو میں بھاگا چلا گیا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بہن کس قدر تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی۔ تمہارے باغا کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور تم لوگ اپنے ددھیال کے ستم سہ رہے تھے۔ بس تمہاری ماں کی خواہش کی تحت میں نے مراد کو بلا کر تمہارا اور اس کا نکاح کر دیا۔ یہ میں نے کوئی بنا سوچے سمجھے نہیں کیا، بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ زنیرہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو اس گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ میرا یہ گھر کبھی صحیح سے بسا ہی نہیں۔ مراد کی ماں نے جب مراد 5 سال کا تھا تب ڈائیورس لے کر کسی اور سے شادی کر لی۔ برسوں کے بعد جب وہ مراد سے ملی تو مراد کو میرے خلاف بھڑکانے لگی اور یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا کہ میرا گھر نہ بسنے کے پیچھے تمہاری ماں رابعہ کا ہاتھ تھا، جبکہ پوری حقیقت یہ نہیں تھی۔ بے شک وجہ رابعہ تھی، لیکن دراصل رابعہ کو تمہارے والد صاحب کے ساتھ گھر سے بھگانے والی میری بیوی صدف تھی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں اس پر بہت بھڑکا اور اس نے میری بہن کے بارے میں بہت کچھ غلط کہا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ طلاق لینا بھی چاہتی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ یہاں سے چلی گئی اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ مگر برسوں کے بعد مراد سے ملی تو اس کے اندر کی حسد جلن نے پھر سے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس نے مراد کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں میرا بیٹا جو ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا ایک دم سے دور جانے لگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے کیونکہ ہم دونوں ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے ہیں۔ لیکن اب دوری آ گئی ہے جس کو تم ہی دور کر سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے تم یہ دوری دور کر کے ہم دونوں کو پھر سے پاس لاؤ گی اور اس گھر کو پھر سے جنت بناؤ گی۔ رابعہ نے تمہاری بہت اچھے سے تربیت کی ہے۔ میں نے اسپتال میں دیکھا تم کس طرح حوصلے اور صبر سے رابعہ کو سنبھالا تھا۔ پھر رابعہ کی وفات کے بعد بھی تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم جیسی صابر بچی ہی میرے غصیلے بیٹے کو برداشت کر سکتی ہے۔ تم کرو گی نا میری مدد؟
दुराब अफंदी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा तो वो परेशान सी उंगलियां चटखाने लगी। मामू, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं मामू जान, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी ये? वो अपने लब कुचलते हुए बोली। मैं जानता हूँ तुम कर पाओगी, अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से उसे जीतो। वो उसके हाथ पे हाथ रखकर बोले तो वो सर इस बात में हिला गई। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर दूसरे कमरे में आकर लेट गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब मुराद वॉक के लिए निकला तो वो वापस कमरे में आई और बेड पर जाकर सो गई। मुराद जब कमरे में आया तो वो गहरी नींद में थी। वो चलता हुआ उसके पास आया, उसके लंबे बालों की चुटियां नीचे जमीन को छू रही थी। वो मबहूत सा उसके हसीन चेहरे को देखता रह गया, जिस पर भला की मासूमियत थी। है तो भला की कयामत, लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। फिर उसने पास पड़े हुए पानी के जग को उस पर उल्टाया तो वो हड़बड़ा कर उठी और उसे देखते ही उसका रंग फक हो गया। जब मैंने कहा था कि तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुराद उसे बाजू से भींचकर अपनी बाहों में भरते हुए फुनकारा तो दानिन जोर से आंखें भींच गई। मुराद की निगाहें बेइख्तियार उन लंबी घनी पलकों का सफ़र करती उसके लबों तक आईं तो कपकपाते उन लहू छलकाते होंठों ने जैसे उसे मेस्मराइज कर दिया था। वो बेइख्तियार उन लबों पर झुका। वो उसके हिसार में कांप रही थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पीछे हटा सकती। फिर मुराद ने उसे आहिस्ता से छोड़ा तो वो भागती हुई जाकर वॉशरूम में घुस गई। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। अभी उसे बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वो वॉशरूम से निकली और चलती हुई उसके पास आई। व्हाट? उसने हैरानगी से देखा। मुझे फ्रेश होना था, वॉशरूम में शावर नहीं है तो बाल्टी मिल सकती है? वो आहिस्ता से बोली तो वो इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट से उसे देखता हुआ उठा और फिर उसे बाजू से खींचकर वॉशरूम में लाकर साइड पे लगे बटन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसे दबाया तो छत पर लगे हुए शावर से छमछम पानी उन दोनों पर बरसने लगा। वो हड़बड़ा कर छत की जानिब देखने लगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शावर ऐसे भी होते हैं। वो शर्मिंदा सी मिनमिनाते हुए बोली तो वो उसके सुबह चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर पानी की बूंदें हीरे की मानिंद चमक रही थीं। वो धीरे से मुड़ी और उसी वक्त उसका पांव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि मुराद ने जल्दी से उसे बाहों में थाम लिया। वो उसकी शर्ट को दबोचे थर थर कांप रही थी। मुराद ने उसे सीधा किया और फिर 2 कदम बढ़ाते हुए उसके करीब होने लगा कि इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। वो अपने दिल को संभालते हुए बाहर निकला तो जुनैरा का फ़ोन था। किधर थे तुम? कब से फ़ोन करी थी मैं तुम्हें, और मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। वो दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही बोली तो वो माथा मसलते हुए सोफे पे बैठ गया। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ जाता हूँ, बताओ कहाँ आना है? वो सर झटक कर बोला। मैं तुमसे सख्त नाराज थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक बार मौका देना चाहिए। जिस लड़की को तुम चाहते ही नहीं हो, मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ भी रहना नहीं चाहोगे। सो मुझे बताओ कि क्या प्लान है, कब दे रहे हो उसे तलाक? वो तेज लहजे में बोली। नहीं, अभी नहीं दे सकता, डैड को बुरा लगेगा। ये क्या बात हुई? अब तुम्हारे डैड अगर मुझे छोड़ने का कहेंगे तो वो भी करोगे? दूसरी तरफ से वो गुस्से से बोली। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए लड़ाई की है। वो नहीं राजी हुए थे, लेकिन मैंने साफ साफ रात को उन्हें कह दिया था कि मैं जुनैरा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। और रही वो लड़की, मेरे सर्द रवैये से वो जल्द अज जल्द मेरी जिंदगी से चली जाएगी। वो खुद इस घर से दुम दबाकर भागेगी, ये मेरी गारंटी है, मुराद ने कहा। ओके फाइन, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे मिलना है। मैं इस वक्त सवात में हूँ एक शूटिंग के सिलसिले में, तो इसीलिए तुम यहीं पर आ रहे हो, वो बोली। हाँ वो तो मैं आ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक डील फाइनल करनी है, तो कल मिलते हैं, मुराद ने कहा। नहीं, अभी और इसी वक्त निकल जाओ और शाम तक पहुंच जाओ यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और हम दोनों एज अ कपल वहाँ पर शामिल होंगे। दूसरी तरफ से जुनैरा ने कहा तो कुछ तजब्जुब के बाद उसने हाँ बोलते हुए कॉल काट दी। दानिन के फ्रेश होने के बाद वो भी वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो दानिन और दुराब अफंदी डाइनिंग हॉल में उसी का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई यार, पहले ही नाश्ता बहुत लेट हो चुका है और ऊपर से तुमने इतना टाइम नहाने पे लगा दिया। बूढ़े बाप पर तरस खा लिया करो। मुझसे ज्यादा यंग देखते हैं आप,
खुद को बूढ़ा बूढ़ा कहकर अंडर एस्टिमेट मत किया करें खुद को। वो संजीदगी से बोलता हुआ उनके पास वाली चेयर पर बैठ गया। अच्छा डैड, मुझे ना सवात जाना है एक मीटिंग के सिलसिले में, तो बस मैं निकलने लगा हूँ। वो बूढ़ा तो दुराबफम भी चौंक गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं पहले ही सोच रहा था कि तुम लोगों को हनीमून पर कहाँ भेजा जाए। बस फिर हमारी बेटी भी तैयारी करे और चलें आपके साथ। क्या हो गया आपको डैड? मैं इसे नहीं साथ लेकर जा रहा और मैं वहां पर हनीमून पे नहीं जा रहा। अपने एक होटल की डील के लिए जा रहा हूँ और मुझे अपने काम पर फोकस करना है। हाँ तो तुम अपना काम करते रहना, बीच में जब फुर्सत मिलेगी तो हमारी बेटी को सवात भी दिखा देना। वो बोले तो वो दिल ही दिल में झुंझुला उठा। फिर मजबूरन वो उसे भी लेकर जाने की हामी भर गया और 12 बजे वो निकले और रात को 8 बजे वो होटल पहुंच चुके थे। उनकी ऑलरेडी होटल में बुकिंग हो चुकी थी। वो लोग कमरे में आए तो पूरा कमरा रेड रोजेस से महक रहा था। वो दिल ही दिल में झुंझुलाता हुआ वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो दानियन सोफे पर चुपचाप बैठी थी। जाकर कपड़े चेंज कर लो, और हाँ, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो लेट हो जाऊंगा, वो बोला और फिर ज़नेरा से मिलने के लिए चला गया। डिनर उसी के साथ करने के बाद वो रात को तकरीबन 12 बजे अपने रूम में पहुंचा तो दानियन सोफे पे बैठी रो रही थी। अरे हेलो, क्या हुआ? उसने जाकर पुकारा तो वो जल्दी से उठकर उसके गले लगती हिचकियों से रो दी। अरे क्या हुआ? वो चाहने के बावजूद अपना लहजा साफ न कर पाया। वो मुझे अकेले को बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो हिचकियों के दरमियान बोली तो वो लब भींच कर आहिस्ता से खुद से दूर कर गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? अजीब हरकतें करती हो तुम भी। मैंने कहा तो था कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो खाना खाने के बाद सो जाना था ना। वो नागवारी से सर झटक कर बोला। वो खाना तो नहीं था और कोई देने भी नहीं आया था, वो मिनमिनाते हुए बोली तो वो सर्द आ भरता सर थामकर सोफे पे बैठ गया। किस तरह की लड़की हो यार? ये इंटरकॉम है और यहाँ पर तुमने अपने खाने का ऑर्डर करना था तो किसी ने देने आना था ना। अजीब हरकतें करती हो, वो गुस्से से बोला तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। अब खाना खाना है या फिर सोना है, बता दो, वो नागवारी से बोला। मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मुझे तो हमेशा से भूखे रहने की आदत है, वो सर झुकाए बोली तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। फिर सर झटक कर उसने खाने का ऑर्डर किया। जब खाना आएगा तो बाहर दरवाज़ा नॉक किया जाएगा तो जाकर खोलकर खाना ले लेना, और हाँ, मेरे भरोसे पर मत रहना क्योंकि क्या पता कब हम दोनों अलग हो जाएं। वो सपाट लहजे में बोला तो दानियन का रंग जर्द सा पड़ गया। फिर खाना आने के बाद दानियन ने खाना खाया और उसके बराबर आकर लेट गई। उसके बराबर आकर लेटी तो मुराद के दिल में जैसे हलचल सी होने लगी थी। वो 28 साल का होने वाला था और उसके बाबा ने उसकी तरबियत इस तरह की थी कि इस कदर मॉडर्न होने के बावजूद उसने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। ज़नेरा के साथ भी उसका सिर्फ इतना सा ताल्लुक था कि वो उसके गले लग जाती थी, फिर दोनों कपल डांस कर लेते थे। इसके अलावा उसने आज तक ज़नेरा को कभी किस तक नहीं की थी, मगर ज़नेरा कभी कभार उसके रुखसार पर किस कर दिया करती थी। पहली बार उसने दानियन को किस की थी और ना जाने कैसे वो लड़की उसकी तलब बन रही थी। नहीं मुराद, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम ज़नेरा को धोखा नहीं दोगे। उसके दिल ने मलामत की तो वो उससे रुख फेर गया, मगर कुछ देर के बाद उसकी चूड़ियों की खनखन से वो झंझलाता हुआ उसकी तरफ पलटा और उसको बाजुओं से खींचकर करीब करते इन चूड़ियों को देखने लगा। क्या जाहिलों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं? वो उसके हाथों में मौजूद उन मल्टी कलर की कांच की चूड़ियों को देखकर बोला तो वो थूक निगलते उसे देखने लगी। क्यों पहनी है तुमने ये? वो धाड़ कर बोला। वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है तो इसीलिए पहनती हूँ। वो अपने गुलाबी होंठों को कुचलते हुए बोली तो वो आंखें मींच कर खुद को कंट्रोल करने लगा, मगर दिल तो उसे छूने की तमन्ना कर रहा था और वो दिल के साथ लड़ते लड़ते एकदम से गुस्से में आया और उसके दोनों हाथों को जकड़कर बेड ग्राउंड के साथ मारा तो उसकी चूड़ियां टूटती दानियन की कलाइयों को जख्मी करती चली गई। फिर बाकी की मौजूद चूड़ियों को उसने बेदर्दी से कलाई को हाथों से जकड़े तोड़ा तो खुद के हाथ भी जख्मी हो गए। वो सिसकियों से रोती हुए पीछे हुई। मुराद गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकला और टेरेस पर आकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। कितनी देर वो वहां पर खड़ा सिगरेट से अपना दिल जलाता रहा। फिर वो कमरे में आया तो दानियन सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया तो उसकी कलाइयों से अभी भी खून रस रहा था और चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान थे। वो लब भींचकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पास आया और स्पिरिट से उसकी कलाई साफ कर ही रहा था कि वो हड़बड़ा कर उठी। लाओ, बैंडेज कर दूं? वो स्याह आंखों से निगाहें चुराकर बोला तो वो बिना कुछ बोले कलाइयां आगे कर गई। उसने उसकी आस्तीन ऊपर की तो बाजू से ऊपर नील के निशान थे। ये क्या हुआ है? उसने बेख्तियार पूछा। वो चाची जब काम नहीं कर पाती थी तो स्टिक से मारती थी, वो आहिस्ता से बोली तो वो बेयकीनी से उसकी शर्ट को कंधों से सरकाकर देखने लगा तो वहां भी निशान थे। वो जोर से लब भींच गया। वो बैंडेज करके दूसरी जानिब जाकर लेट गया। अगले दिन वो सुबह उठा तो दानियन सोफे पर बैठी थी।
वो उठकर चेंज करने चला गया। कुछ देर गुजरी तो दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी जुनैरा को देखकर चौंक गया। वो अंदर दाखिल हुई और उसके गले लगते हुए उसके रुखसार पर किस की। उसने बेइख्तियार दानियन की जानब देखा जो उधर ही देख रही थी। जुनैरा की बेबाकी पर दानियन सुर्ख हो गई थी और उसके साथ साथ वो भी शर्मिंदा सा उसे पीछे करता रुख फेर गया। तो ये है तुम्हारी बीवी, काफ़ी कम उम्र लग रही है। जुनैरा दानियन को चुपती हुई निगाहों से देखकर बोली। बैठो, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ, इकट्ठे करते हैं। वो बोला। यहाँ कमरे में करोगे, बाहर रेस्टोरेंट में चलते हैं ना? जुनैरा ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। तुम भी चलो ताकि हम मिल बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें, क्या ख्याल है? जुनैरा ने कहा तो वो अंदर ही अंदर मुस्तरिब सा हो गया। वो तीनों बाहर रेस्टोरेंट में आए और नाश्ते का ऑर्डर करके बैठ गए। सो क्या करती हो तुम? जुनैरा ने दानियन से पूछा। कुछ भी नहीं, वो सर झुकाया आहिस्ता से बोली। कितना पढ़ी लिखी हो? प्राइवेट एफए किया है, दानियन बोली। बस एफए? जुनैरा ने तंजिया अंदाज में कहा। जी, वो भी पढ़ना है जब रिजल्ट आएगा, दानियन ने कहा। इतना लेट एफए? मेरी उम्र 16 साल है और इतनी उम्र में ही एफए होता है, वो बोली तो जुनैरा चौंक गई। लगती तो नहीं हो कि तुम 16 साल की हो, मुझे तो लगा कि 20-22 की होगी। तुम्हारा कद काट काफ़ी अच्छा है ना? जुनैरा ने हसद और जलन से उसे देखते हुए कहा। मॉडलिंग के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी मॉडल बन सकती है तुम? जुनैरा ने कहा। नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं आती, वो आहिस्ता से बोली। बस कर दो, कितने सवाल जवाब करोगी? अकता गया हूं मैं, मुराद चिढ़कर बोला। ओ मेरे बेबी को मुझसे बातें करनी है, वो मुराद के करीब होकर उसके रुखसार पर फिर से अपने लब रखते हुए बोली। उसकी बेबाकी पर मुराद दिल ही दिल में झुंझला उठा था। लोग उसे मानीखेज निगाहों से देख रहे थे। फिर जुनैरा के कुछ फैंस वगैरह आगे आए और वो उनको ऑटोग्राफ देने लगी। वो सर झुकाए नाश्ता कर रहा था मगर साथ दानियन को भी देख रहा था, जो कि बेदिली से प्लेट में चम्मच चला रही थी। सो इम्पॉर्टेंट बात कर ली जाए। दरअसल मैं और मुराद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम्हें मुराद ने बताया ही होगा, तो इसीलिए तुम अगर ये समझ रही हो कि मुराद तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ निभाएगा तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि वो जल्द ही तुम्हें तलाक दे ही देगा और उसके बाद तुम अपने रास्ते और फिर मुराद और मेरी शादी होगी। बाकी अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम हमें बता सकती हो। कोई लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? जुनैरा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ, वो कपकपाते लबों से बोली। गुड, अगर तुम कहो तो मैं और मुराद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ देंगे, क्या ख्याल है मुराद? जुनैरा ने कहा तो उसने बेइख्तियार दानियन की तरफ देखा जो उसी को देख रही थी। उसकी निगाहों में अजीब सा खौफ था जो कि मुराद के दिल को बेचैन कर गया। जुनैरा प्लीज़, हम कोई और बात कर सकते हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में हम दोनों को शॉपिंग पे चलना चाहिए। मुराद ने बात पलटने के लिए जुनैरा का ध्यान उसकी पसंदीदा चीज़ पर लगाया तो वो खुश हो गई। हाँ, ये ठीक है, जुनैरा चहक कर बोली। फिर वो जुनैरा के साथ शॉपिंग के लिए चला गया और दानियन उठकर कमरे में आ गई। क्या मेरा कोई घर नहीं है अल्लाह पाक? क्या हमेशा की तरह मैं इसी तरह डर और खौफ में जीती रहूंगी जैसे बचपन से जीती आ रही हूँ? वो रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। फिर कुछ देर आराम के बाद वो उठकर टेरेस पर आ गई। वो बाहर देखते हुए उन नज़ारों में खोई हुई थी और न जाने कितना वक्त वहीं पर खड़ी रही। फिर उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा तो मुराद अंदर दाखिल हो रहा था। ये डैड से बात कर लो, मुराद ने मोबाइल उसके तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने चुपचाप मोबाइल कान को लगा लिया। बात करने के बाद उसने मोबाइल मुराद को दिया और पलट ही रही थी कि अचानक उसका पाँव मोड़ा और वो जाकर मुराद की गोद में गिरी। मुराद साख तो जामिद सा उसे अपनी बाहों में भरे बैठा था। वो इसकी शर्ट को कॉलर से दबोचे जोर से आंखें मीचकर उसकी गोद में बैठी थी। तुम ठीक हो? मुराद ने नरम लहजे में पूछा तो वो आहिस्ता से उसे दूर होने लगी, मगर मुराद का मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा था। मुराद ने उसे मजीद खुद के करीब किया और शिद्दतें निछावर करने लगा। वो उसके हिसार में सुकड़ी सिमटी सी बैठी थी और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इस शख्स को अपने से दूर कर सकती। मोबाइल की रिंग पे वो होश में आया और उसे छोड़ता मोबाइल कान को लगाता टेरेस पे चला गया। कुछ देर के बाद वो फ़ोन सुनकर बाहर आया तो वो बेड पर जाकर लेटी हुई थी। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूं, डैड ने बोला था। वो पास आकर बोला तो वो चुपचाप उसके साथ उठकर चल दी। कुछ देर के बाद वो एक बड़े से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए और वो उसे लेकर लिफ्ट एरिया में आया तो वो एकदम से वहां पर आकर रुक गई। व्हाट हैपेंड? मुराद ने चौंक कर पूछा। मुझे लिफ्ट से डर लगता है, क्या हम सीढ़ियों से नहीं जा सकते? उसने लब कुचलते हुए पूछा। इस शॉपिंग मॉल में कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, वो कहता हुआ उसका हाथ थामकर उस लिफ्ट के अंदर ले आया। लिफ्ट को एक झटका लगा तो वो चीख मारती उसके सीने से लग गई। वो दोनों उस वक्त लिफ्ट में अकेले थे और मुराद फिर से उसे अपने इतने करीब देखकर बहकने लगा था। वो बामुश्किल खुद को कंट्रोल किए हुए था, मगर फिर एकदम से लिफ्ट को झटका लगा और वो रुक गई, यहाँ तक कि उसकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। वो लब भींच कर रह गया।
لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے یا پھر لفٹ خراب ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہوئے ریسیور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا اور دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ لفٹ خراب ہو چکی ہے اور انہیں کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو کہ فقط چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے یہاں پر، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ اپنے نازک ہاتھ لفٹ کے دروازے پر مارتے ہوئے چلا کر بولنے لگی۔ دانین بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ دیر کی بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ میری سانس رک جائے گی، وہ زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اسے باہوں میں بھر گیا۔ میری طرف دیکھو دانین، اس کی تھوڑی سے تھامتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا تو اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ وہ اس کا ذہن بٹانے کے لیے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پسند، پلیز دروازہ کھول دیجئے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اور میں ہوں نا یہاں پر، تم اکیلی نہیں ہو، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے بولا۔ وہ چاچی مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھیں جب مما جاب پر جاتی تھیں، بہت مارتی تھیں وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ڈونٹ وری، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر 10 منٹ کے بعد لفٹ کو جھٹکا لگا اور پھر سے وہ چلنے لگی۔ لفٹ کے رکتے ہی وہ لوگ اوپر پہنچے تو باہر مینیجر اور دوسرے لوگ کھڑے تھے۔ کس قدر غیر ذمہ دار سٹاف ہے آپ کا، لفٹ خراب ہے تو بتانا چاہیے نا، وہ دھاڑا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لفٹ خراب ہے اور ایک دم سے خراب ہوئی ہے، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، مینیجر نے کہا تو وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ شاپنگ کرنے کے بعد باہر آئے۔ تم یہاں پر کھڑی ہو، میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، وہ بولتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ ایک سائٹ پر کھڑی تھی کہ کچھ لڑکے آ کر اسے چھیڑنے لگے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر باہر آیا تو ایک لڑکا دانین کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے پاس آیا اور کالر سے پکڑتے ہوئے اس لڑکے کو گھسیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ پھر کچھ دیر میں وہ لڑکوں کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا اور وہ سہمی سی ایک سائٹ پر کھڑی تھی۔ پھر ایک لڑکے نے پسٹل نکال کر مراد پہ گولی چلا دی اور وہ کرہاتا ہوا زمین پہ بیٹھ گیا، اور دانین کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخیں مارنے لگی، اور اس کی چیخیں سن کر وہاں موجود گارڈ جلدی سے بھاگے چلے آئے اور لڑکے انہیں دیکھ کر جلدی سے بھاگ گئے۔ دانین تیزی سے پاس آئی اور اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کر مزید شدت سے رونے لگی۔ پھر وہاں ایک آدمی نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ گولی کندھے کے اوپر لگی تھی اور اندر ہی تھی۔ آپریشن کے بعد گولی تو نکال دی گئی تھی مگر وہ ابھی تک میڈیسن کے زیر اثر سو رہا تھا۔ دانین اس کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھوکے مار رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک خوف سا سرایت کر رہا تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ پھر وہ یوں ہی اس کے پاس بیڈ پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ مراد کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے سر گھمایا تو اسے گردن اور کندھے میں شدید درد محسوس ہوا، اور پھر نگاہ دانین پہ پڑی جو کہ اس کے بازو کے پاس سر ٹکائے سو رہی تھی اور اس کا ہاتھ مراد کے سینے پر تھا۔ مراد نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے مخملی ہاتھ کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر اٹھ گئی۔ پلیز پانی پلا دو، وہ ہولے سے بولا تو وہ جلدی سے پانی ڈال کر پاس آئی۔ تو وہ اٹھنے کے لیے ذرا سا اوپر ہونے لگا تو بازو پر زور لگنے سے کندھے پر شدید درد محسوس ہوا تو وہ لب بھینچ کر دوبارہ سر دکیے پہ ٹکا گیا۔ دانین نے پاس آ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلانے لگی۔ پھر وہ سوپ وغیرہ پینے کے بعد دوبارہ سے آرام کرنے لگا مگر ساتھ ہی اس نے سر گھما کر اسے دیکھا جو کہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دانین پلیز میرا سر دبا دو یہاں آ کر، مراد نے کہا تو وہ چلتی ہوئی پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ لیٹ جاؤ میرے پاس، مراد نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی صبح شاید چھٹی ہو جائے، اگر سونا ہوا تو میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ میرے ساتھ سونے میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا تمہیں میرا چھونا برا لگتا ہے؟ وہ اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر آؤ، لیٹ جاؤ، اس نے اپنا دوسرا بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر دوسری سائڈ پر آ کر آہستہ سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جتنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے نفرت کرے مگر نہ جانے کیوں دل اس کی طلب کرنے لگا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو چکا تھا۔ اگلے دن جب آنکھ کھلی تو وہ اس کے اتنی قریب تھی کہ وہ ذرا سا سر گھماتا تو اس کے لب دانین کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ وہ اسے آہستہ سے پکارنے لگا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ بازو میں پین تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔
वो भी जल्दी से बेड से उतरी और डॉक्टर से मिलने चली गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ टेस्ट वगैरह लेने को कहा और शाम तक उन्हें छुट्टी मिल जानी थी। वो वहाँ से कैंटीन की जाने बढ़ी और अपने लिए और उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई। वो दोनों बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ और दराब आफंदी अंदर दाखिल हुए। कैसे हो बेटे? मुझे रात को ही मैसेज मिला, मैं तो इतना परेशान हो गया और रात को ही मैं चल पड़ा, वो बेताबी भरी लहजे में बोले। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोला। आप भी मामू जान नाश्ता कर लीजिए, वो जल्दी से उठते हुए बोली। अरे नहीं नहीं बेटा, आप करो, मैं बाद में कर लूंगा, दराब आफंदी ने कहा, मगर वो उन्हें फोर्स करने लगे तो वो चुपचाप उसके साथ बैठकर नाश्ता लगे। फिर वो बैठे बातें कर ही रहे थे कि ज़नीरा और सदफ अंदर दाखिल हुईं। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? सदफ उसके गले लगकर रोते हुए बोली। दराब आफंदी सपाट चेहरे से बैठे थे। बेटे, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, वो बहाने से उठकर वहां से चले गए। देखा, अपने बाप को कितनी नफरत है उन्हें मुझसे, और इसकी वजह है उस लड़की की माँ। घर से वो भागी थी मगर इल्ज़ाम मुझ पे लगा कर गई, बर्बाद कर गई जाते जाते मेरी जिंदगी, और खुद मरते मरते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके गई। भगोड़ी, बदकिरदार, बस एक लफ्ज़ मजीद मत बोलिएगा मेरी माँ के बारे में। आप होती कौन है उनके बारे में इस तरह बोलने वाली? वो गुस्से से बोली तो मुराद ने बेयकीनी से उसे देखा, ये मासूम सी दिखने वाली कितनी बड़ी आफत है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इस मासूम चेहरे के पीछे कुछ और ही है। मुझे रात से ज़नीरा बोल रही है कि आनी वो बहुत खूबसूरत और मासूम सी लगती है, मगर मैंने पहले ही समझ लिया था कि ये भी अपनी माँ की तरह बहुत शातिर होगी। देखो ना, मरने से पहले कितनी बड़ी चाल खेल कर गई, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ में शामिल कर लिया तुम्हारे बाप को, जबकि वो जानता भी था कि तुम ज़नीरा को पसंद करते हो। सदफ ने उसे तनफ्फुर भरी निगाहों से देखते हुए कहा। वो सुर्ख चेहरे से खड़ी मुराद को देख रही थी। मैंने आपके बेटे को मना नहीं किया, वो अब भी चाहें तो आपकी भांजी से शादी कर सकते हैं, वो इंतहाई गुस्से से बोली और फिर गुस्से से बाहर निकली तो साइड पे खड़े दराब आफंदी ने उसे संजीदगी से देखा। वो रोती हुई सामने बेंच पर बैठ गई। बहुत गलत कर दिया आपने, उस औरत को सच्चा कर दिया आपने। मुराद के दिल में जो थोड़ी बहुत आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी वो भी खत्म हो गई होगी। तो और क्या करती मैं मामू जान? वो मेरी माँ के बारे में बोल रही थी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सहना बहुत मुश्किल था, मगर हर चीज का एक वक्त होता है बेटे, और उस औरत के कहने से कुछ नहीं होता बेटे। आप थोड़ा सा सब्र से काम लेंगी ना तो मुराद के दिल में लगी हुई हर गिरह खुल जाएगी। शायद मैं ज्यादा ही खुदगर्ज बन रहा हूँ अपने घर को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, आइंदा से नहीं कहूँगा कुछ। वो उसके सर पर हाथ रखते अफसुर्दा लहजे में बोले तो वो तड़प सी उठी। सॉरी मामू जान, मैं जज्बाती हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा हर एक ने बदकिरदार, भगोड़ी ये सब बोला। वो हमेशा चुप रहती थी। मुझे बहुत दर्द होता था, इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सर झुकाए बोली तो दराब आफंदी ने उसका माथा चूमते गले लगा लिया। फिर सदफ और ज़नीरा के जाने के बाद वो लोग अंदर आए तो मुराद का चेहरा हर जज्बात से आरी था। दानियन, इसे मेडिसिन देनी चाहिए। तो मुराद ने उसका हाथ झटक दिया। जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो मेरी माँ के साथ बदतमीजी और इंसाफ नहीं करता ना, मैं उनको अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। दानियन ने लब कुचलते हुए दराब आफंदी को देखा, जिनके चेहरे पे दर्द सा दिख रहा था। फिर वो शाम तक उसके पास ही रहे थे, मगर मुराद ने एक बार भी उनसे बात नहीं की थी। वो दराब आफंदी से तो पहले ही दूर हो चुका था, मगर दानीन जो आज सदफ के सामने बोली थी उसकी वजह से वो उससे भी बात नहीं कर रहा था। दानीन को अब खुद का कंट्रोल खो देने पे गुस्सा आ रहा था। शाम को उन्हें छुट्टी हो चुकी थी और वो लोग होटल वापस आ गए और दुराब आफंदी भी साथ ही थे। उन्होंने अपने लिए दूसरा रूम बुक करवा लिया था, लेकिन फिलहाल वो उनके कमरे में ही बैठे थे। उन्होंने डिनर का ऑर्डर किया और फिर वो बैठे इंतजार करने लगे। उन तीनों के दरमियान अभी भी खामोशी ही थी। तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है ना? तो हम कल सुबह वापसी के लिए निकलेंगे, अचानक से दुराब आफंदी ने पूछा। नहीं, मुझे मॉम के साथ कुछ दिन यहाँ पर ठहरना है, आप अपनी भांजी को लेकर चले जाइएगा, वो सपाट लहजे में बोला तो दुराब आफंदी ने जोर से अपने लब भींच लिए। क्या पागलपन है? तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? आखिर साबित क्या करना चाहते हो मुझ पे? क्या ये बात कि तुम्हारा बाप गुनहगार है? तो क्या नहीं है? मुराद जवाबन तल्ख लहजे में बोला। अच्छा तो साबित करो गुनाह मेरा, कि मैंने क्या गुनाह किया है? वो तल्ख लहजे में बोले।
पुरानी सब बातें एक तरफ रखकर जो नया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अपनी औलाद को उसके नापसंदीदा शख्स के साथ बांधना भी जुल्म होता है। क्या आपने मुझे जबरदस्ती उस लड़की के साथ नहीं बांधा, जबकि आप जानते थे कि मैं जुनैरा को पसंद करता हूँ? वो उनकी आंखों में आंखें डाले तल्ख लहजे में बोला, गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने समझ लिया कि मेरा बेटा बहुत समझदार है और वो रिश्ते को निभाएगा, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ठीक है, तुम्हें जुनैरा से शादी करनी है ना, तो करो। और हाँ, अपनी माँ के पास वापस जाना चाहते हो ना, तो जाओ। बाकी तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जाओ, जाकर अपनी माँ के पास रहो। मैं दुराब आफंदी तुमसे अपना हर नाता तोड़ता हूँ। इस बार वो बोले नहीं, धाड़े थी। वो बेयकीनी से उन्हें देख गया। दानीन भी गुमसुम सी उन्हें देख रही थी। करो अपनी माँ को फ़ोन कि वो आकर तुम्हें लेकर जाए, ताकि मैं सुकून से यहाँ से जा सकूं, क्योंकि आखिर तुम मेरा खून हो, तो मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। वो सर्द लहजे में बोले, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाइए अपनी भांजी को लेकर, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। वो तल्ख लहजे में बोला। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो दानियन बेटा, आप जल्दी से चादर लेकर बाहर आए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक झटके से उठकर खड़े होते हुए बोले। दानियन बेबसी भरे अंदाज में उन्हें देखने लगी। मामू, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो इस तरह कैसे? वो कह रहा है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब वो आपके मुतल्लिक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आप क्यों निभा रही हैं? उसने कभी नहीं सोचा कि उसका बाप क्या सोचता है। उसे तो हमेशा से दूसरों के कानों से सुनने की और दूसरों की बातों पर यकीन करने की आदत है, और उसे ऐसा बनाने में मेरा ही हाथ है। मैंने उसे कभी सच्चाई बताई ही नहीं कोई। मैंने उसे नफरत करना नहीं सिखाया था, मगर उसने सीख ली। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाप ने उसकी खातिर कभी किसी औरत का हाथ नहीं थामा, हजारों अरमान दिल में दफन करके उसके लिए जिया हो, और आज उसका बाप उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस बार दुराब आफंदी का लहजा भीगा हुआ था। फिर वो दानेन को लेकर वहां से निकलते चले गए। वो मुस्तरिब सा अकेला उस कमरे में बैठा था, और सदफ को उसने सारी बात बताई तो वो उसे लेने आ गई थी। अगले ही दिन वो उनके साथ लाहौर वापस आ चुका था। सदफ ने उसे उसके कमरे में पहुंचाया और उसने कुछ देर आराम किया। बाहर आया तो बेइख्तियार किचन में चला गया तो वहां पर मुलाजमा खड़ी थी। खाना क्या बनाया है? उसने पूछा तो मुलाजमा ने हैरानगी से उसे देखा। वो आज तो खाना नहीं बना, सिर्फ मुलाजम हजरात के लिए बनाया है। दरअसल आज मैडम और सर की एनिवर्सरी है तो वो लोग बाहर गए हैं। मुलाजमा ने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। आप लोग अपने खाने में से ही मुझे दे दीजिए। वो अपना दुखता सर दबाता हुआ टेबल पर बैठ गया। कुछ देर के बाद मुलाजमा आई तो उसके सामने दाल और रोटी रखी। ये क्या है? उसने हैरानगी से पूछा। साहब जी, ये हम मुलाजमों का खाना है। वो मुलाजमा आहिस्ता से बोली। वॉट? क्या इस घर में मुलाजमों का खाना अलहदा बनता है? उसने हैरानी से पूछा। जी साहिब जी, हम लोगों के लिए कोई दाल रोटी और कभी कोई सब्जी रोटी बन जाती है, और साहब लोगों के लिए दूसरे वाला खाना बनता है। मुलाजमा ने आहिस्ता से जवाब दिया तो वो लब भींचकर उस दाल रोटी को खाने लगा। बेइख्तियार उसे अपने घर का सीन याद आ गया, जहाँ पर जो खाना वो लोग खाते हैं वहीं मुलाजिम भी खाते थे। तुराब आफंदी तो हर मुलाजिम का अपने घर के फ़र्द की तरह ख्याल रखते थे। वो बमुश्किल आधी रोटी खाकर उठकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन वो लाउंज में बैठा हुआ था कि सदफ उसके पास आई। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जायदाद के बारे में कुछ कहा तुमसे? मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी जायदाद लेनी चाहिए, सदफ ने कहा। नहीं मॉम, उन्होंने मुझे जायदाद से आग कर दिया है। वो सपाट चेहरे से बोला। वॉट? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? वो तल्ख लहजे में बोली। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और मैं आपका बेटा हूं तो जाहिरी बात है आपका कारोबार भी संभालूंगा ना, क्योंकि आपका दूसरा बेटा तो अभी 22 साल का है। वो इत्मीनान से बोला तो सदफ लब भींच कर रह गई। फिर वो उन्हें यूं ही गुमसुम छोड़कर अपने कमरे में आ गया। उसे यहाँ पर रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और जुनैरा उससे 1-2 बार ही मिलने आई थी। एक दिन वो दोपहर में सोकर उठा और चाय पीने के इरादे से किचन की जानिब बढ़ रहा था कि लाउंज से आती आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। क्या हुआ खाला, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं? जुनैरा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तो और क्या करूं, तुम्हारे खालू मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे यहाँ से चलता करूं, लेकिन अब मैं यहाँ से इसे कैसे भेजूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इंतहाई बेवकूफ़ इंसान है। मुझे लगा था कि अपनी दौलत जायदाद लेकर आएगा, मगर खाली हाथ आ गया। और इलियास साहब ने तो साफ कह दिया कि मैं तो नहीं रखूँगा। पहले ही कारोबार में इतना नुकसान हुआ है, और मैंने सोचा था कि चलो अपने साथ कुछ लाएगा तो मैं इलियास के कारोबार में डाल दूंगी, तो वो खुश हो जाएंगे, और जब अमेरिका से वापस आएगा तो उसे जमा जमाया कारोबार मिलेगा। मगर इंतहाई बेवकूफ़ निकला मेरा बेटा।
اب مجھے بتاؤ کہ میں اسے یہاں سے کیسے نکالوں؟ صدف کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور کیا، سچ میں بہت بے وقوف ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا مستقبل بھی سیکیور ہو جائے گا، مگر اب مجھے بھی نہیں اس سے شادی وادی کرنی، سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے۔ مجھے تو وقاص نے پروپوز کیا تھا، میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب بہت جلد شادی کروں گی، اور میں تو ویسے بھی اکتا چکی تھی اس انسان سے، اور آپ کے کہنے پر میں نے اس سے محبت کا کھیل تو کھیل لیا، مگر میں زیادہ دیر اس کے ساتھ ٹک نہیں سکتی تھی، سو فائنلی میری جان چھوٹ گئی۔ سنیرا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ تلخ انداز میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، صرف ایک ہفتے میں آپ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئیں کیونکہ میرے پاس میرے باپ کی دولت نہیں رہی؟ پتہ ہے، ہوٹل میں جب ڈیڈ مجھے چھوڑ کر گئے نا، اور انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کی کہ انہوں نے میری خاطر کسی عورت کو اپنایا تک نہیں، میں نے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا، تو میں نے سوچا کہ ایک طرف آپ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بسایا اور آپ کا بیٹا اور شوہر ہے، اور دوسری طرف میرے ڈیڈ جنہوں نے ایک پوری زندگی میرے نام کر دی۔ اگر وہ چاہتے نا تو مرد ہونے کے ناطے دوسری شادی کر لیتے اور انہیں کوئی بھی ہنس کر اپنی بیٹی دے دیتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں مجھ پر کوئی ایسی سوتیلی ماں مسلط نہ کر دی جائے جو مجھ پر ظلم ڈھائے۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی جوانی کو بھی قربان کر گئے، مگر آپ نے تو اپنے خوابوں کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا، اور آج بھی آپ کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، اس کی دولت چاہیے تھی۔ میں یہی دیکھنے کے لیے اس گھر میں آیا تھا کہ کتنے دن مجھے میری ماں رکھ سکتی ہے۔ آپ تو ماں کیا، ایک اچھی عورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عورت وفا کی مٹی سے گندھی ہوئی ہوتی ہے، مگر آپ نے کوئی وفا نہیں کی، نہ اپنے شوہر سے، نہ رشتوں سے، اور نہ ہی اپنے بیٹے سے۔ وہ چلا کر بول رہا تھا اور وہ دونوں پھک چہرے سے اسے دیکھ رہی تھیں، پھر وہ انہیں یوں ہی ساکت اور جامد چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پیدل ہی سڑک پر چلتا جا رہا تھا، پھر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر جھکائے رو دیا۔ پھر ایک گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تو مراد نے سر اٹھا کر دیکھا تو گاڑی سے دراب آفندی نکل رہے تھے۔ مراد، میرے بچے، کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے اور پھر ساتھ ہی دراب آفندی کی سیکرٹری بھی پاس آ گئی۔ وہ جلدی سے ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا کہ ارد گرد کے لوگ حیرت سے رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر دراب آفندی اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنی سیکرٹری کی جانب مڑے۔ تھینک یو مس زرینہ، آپ نے مجھے انفارم کر دیا میرے بیٹے کے بارے میں آپ کو گھر ڈراپ کروا دیتا ہوں، دراب آفندی نے کہا۔ نہیں سر، وہ دراصل میں سامنے ہاسپٹل میں ہوں، میری مدر ہاسپٹل میں تھی تو اسی لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، زرینہ نے کہا۔ اوہو سوری، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی مدر ہاسپٹل میں ہے، مگر میں اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ خبر گیری کے لیے نہیں آ سکا۔ مراد تم بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ بولے تو مراد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں جوس تھے۔ میں نے سوچا کہ باپ بیٹا آج مل کر چل کرتے ہیں، انہوں نے مینگو جوس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھے گیا۔ ناراض نہیں ہے مجھ سے آپ؟ بالکل نہیں میرے بچے، اور مجھے معلوم تھا میرا پاگل سا بیٹا میرے پاس ہی واپس آئے گا، وہ مسکرا کر بولے تو وہ نمروٹھی انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ ویسے آپ نے اپنی بھانجی کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس طرح تمہاری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اسی لیے دانین کو BA میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں، تو اب وہ تم سے علیحدہ کمرے میں ہی رہے گی، وہ مطمئن لہجے میں بولتے اسے بے سکون کر گیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ گھر پہنچا تو اس کا اس طرح استقبال کیا گیا تھا جیسے وہ محاذ سے جیت کر آیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دانین سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہو رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں دھندلا سا گیا تھا، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ صرف ڈنر کے ٹائم اسے ملی تھی۔ دانین بیٹے، میں نے آپ کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کر دیا ہے اور کل سے شفیق احمد آپ کو پڑھانے آئیں گے، میرے مینیجر ہیں اور بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ، دراب آفندی نے کہا تو مراد نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ آپ اس طرح کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا۔ کیسا فیصلہ؟ دراب آفندی نے چونک کر پوچھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے میری بیوی کو میرے کمرے سے علیحدہ کر دیا، اور دوسرا اسے کوئی غیر مرد کیوں پڑھانے آئے گا؟ میں ہوں نا یار، وہ تپ کر بولا۔ تو دراب آفندی نے بمشکل سر نیچے کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ اوہو، تم تو میری بھانجی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، اور میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی کا تو ازالہ کر رہا ہوں۔ اس کو ازالہ کرنا کہتے ہیں یار، حد ہوتی ہے۔ اب وہ میری بیوی بن چکی ہے، اسے میرے کمرے میں رہنے دیجیے نا، اور میں نے کون سا اسے پڑھنے سے روک دینا ہے؟ وہ انتہائی جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہیں، وہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے گی، تم اسے ڈسٹرب کرو گے، دراب آفندی نے کہا تو وہ مزید تب کیا۔ آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کی بھانجی کو بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا،
बस अब आप मुझे मेरी बीवी वापस कर दीजिए, गुजारिश डाल रहा हूँ आपके सामने, वरना उठा कर ले जाऊंगा। इसने इस बार बगैर लगी लिपटी के कहा तो दराबा फंदी का फलक शगाफ कह कहा गूंज उठा। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बेटे, मैं तो तुम्हारी बेताबी पर हंस रहा हूँ कि कहाँ मेरा बेटा जिस लड़की को अपने कमरे में भी नहीं रखना चाहता था, अब जबरदस्ती अपने कमरे में रखना चाहता है। वक्त वक्त की बात है, दराबा फंदी ने कहा। कोई बात नहीं, हंस लीजिए, क्योंकि मैं भी आपका बहुत जल्द इंतजाम करने वाला हूँ, वो मुंह बनाकर बोला। कैसा इंतजाम? दराबा फंदी ने चौंक कर पूछा। आपके सर पर सहरा सजाने का। ये पहला बेटा होगा जो कि अपने बाप के लिए रिश्ता लेकर जाएगा मिस जरीना के यहाँ, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला तो दराबा फंदी के हलक में नवाला अटक गया। क्या बोल रहे हो? फजूल बकवास मत करो, ये मेरी शादी करने की कोई उम्र है क्या? वो निगाहें चुराकर बोले। अगर मोहब्बत करने की उम्र है तो शादी भी तो कर ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है आपको? वो भी उन्हीं का बेटा था। अरे मैंने किससे मोहब्बत कर ली? ऐसा कुछ नहीं है, फजूल में अंदाजे मत लगाओ। वो हनूज निगाहें चुरा रहे थे। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहें आपको मिस जरीना पसंद नहीं है। अच्छे से देख रहा हूँ, पिछले कई दिनों से रोज हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, उनकी वालिदा माजिदा को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। गया था मैं भी उनसे मिलने, और उन्होंने कहा है कि आपके बड़े भाई का बहुत शुक्रिया कि वो इतना ध्यान रखते हैं, और ये भी पूछा है कि शादीशुदा हैं आपके बड़े भाई। मैंने उन्हें कह दिया कि जी नहीं, बिल्कुल कुंवारे हैं, और मैं उनके लिए एक अदद रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, तो आप जल्दी से ठीक होकर घर पहुँचें, मैं जल्दी अपने बड़े भाई की बारात लेकर आ रहा हूँ। वो मुतमईन अंदाज में बोलता जा रहा था और दराबा फंदी का मुंह हैरत से खुल गया और उसकी बात पे दानीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। चुप, खबरदार, तुमने अगर इसका साथ दिया तो। दराब आफंदी ने मसनूई गुस्से में डांटते हुए कहा तो वो सर नीचे किए अपनी हंसी जब्त करने लगी। दानीन जरा देखो अपने सुसर जी कम जेठ जी को, कैसे 400 वॉट के बल्ब जल रहे हैं चेहरे शरीफ पर। वो अभी भी पुरमजा अंदाज में बोल रहा था। तुम मुझसे बहुत मार खाने वाले हो, दराब आफंदी ने सुर्ख चेहरे से कहा तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। फिर रात को वो अपने कमरे में सोफा चेयर पे बैठा था कि दानैन अंदर दाखिल हुई और उंगलियां चटखाते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो उसका हाथ थामते उसे अपनी गोद में बिठा गया। एम सॉरी माय लव, बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें। वो उसके होंठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला और एक बाजू कमर के गिर्द हमायल था। नहीं तो, वो लरसती पलकों को झुकाए उसके कंधे से जकड़े बमुश्किल बोली तो वो उसे अपने हिसार में लेता अपनी शिद्दत बरसाने लगा। फिर वो उसकी गुस्ताखियों से घबराकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आज मुझे मत रोको मेरी जान। वो उसके माथे पे बोसा देते हुए उसे खुद में भींच गया। फिर यूं ही गोद में उठाए बेड पे आता उसके पहलू में लेटे उस पे अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। सुबह को उसकी आंख खुली तो वो पुरसुकून सी उसके सीने पर सो रही थी। उसने सर घुमाकर टाइम देखा तो 7:15 हो रहे थे। दानैन मेरी जान, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? उसका रुखसार थपथपाकर बोला। नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आपने पूरी रात जगाया, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। वो गनूदगी में बोली तो मुराद भी मुबहिम सा मुस्कुराता हुआ इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर गिरा गया। चलो फिर ठीक है, आज मैं भी ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ और हम छुट्टी मनाते हैं। वो इसके कान की लो को लबों से छूते हुए बोला तो वो हड़बड़ाकर इस पर से उठने लगी। वो दोबारा से उसे पहलू में गिराए, उसके दोनों बाजू जकड़कर उस पर झुका। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है मुराद, मेरा कल टेस्ट है, मुझे थोड़ा सा आराम करने दीजिए प्लीज़। वो मुंह बसूर कर बोली तो मुराद को उस पर टूट कर प्यार आया। वो शिद्दत से उसके माथे पर बोसा देता उठकर बैठ गया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद फ्रेश होकर पार्लर चली जाना, और हाँ, अच्छा सा ड्रेस निकाल लो, आज हम डैड का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। वो बोला तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या आप सीरियस हैं? मतलब आपको लगता है कि मामू की शादी होनी चाहिए? क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये होना चाहिए? और मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डैड ने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी को बेरंग रखा और अब मैं उनकी ज़िंदगी में ये रंग भरना चाहता हूँ। वो उसकी बात के जवाब में बोला, लेकिन लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, क्या वो सब सह पाएंगे आप? उसने एक और सवाल किया। बिल्कुल मेरी जान, और मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस उम्र में आकर मर्द को एक बीवी की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाऊँगा और वो बहुत तन्हा हो जाएंगे। अब उनके दुख सुख सुनने वाली आ जाएंगी ना, तो वो खुश रहेंगे। वो मजबूत लहजे में बोला तो वो धीमे सा मुस्कुरा दी। आप बहुत स्वीट हैं, आई लव यू माई स्वीटो। वो उसके रुखसार को छूते हुए बोली तो वो धीमे सा मुस्कुरा दिया।
پھر شام کو وہ لوگ زرینہ کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے رشتے کی بات کی تو وہ جیسے خوشی سے کھل ہی اٹھی۔ زرینہ کی بھابھیوں نے اس بات پر کافی واویلا کیا، مگر زرینہ کی ماں نے ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ زرینہ کی عمر 35 سال ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو ہمیشہ قربان کیا تھا۔ اس نے اتنی چھوٹی عمر میں جاب کر کے انہیں پڑھایا لکھایا تھا اور وہ 10 سال سے دراب افندی کی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی، اور آج تک کبھی دراب افندی میں انہیں نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کب دراب افندی کو وہ چاہنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اسے دراب افندی کے آنکھوں میں بھی اپنے لیے محبت دکھتی تھی، مگر انہوں نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا۔ آج ان کا رشتہ آیا تو جیسے زرینہ کے سارے غم دھل گئے۔ اگلے ہفتے دراب افندی اور زرینہ کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس سے اگلے دن شاید یہ دنیا کا پہلا ولیمہ تھا جہاں پر باپ اور بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ کرنے والے باتیں بھی کر رہے تھے، مگر ان لوگوں نے کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ ڈیڈ، ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ اس نے اچانک سے پوچھا تو دراب افندی سٹپٹا کر زرینہ کو دیکھنے لگے، جو کہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ویسے ماموں، مراد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی زرینہ جی کو لے کر کہیں نہ کہیں تو جانا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں 1-2 مہینے کی چھٹیوں پر چلے جائیے، آپ کو بھی تو ریلیکس ہونا چاہیے نا، اور چھوڑے مراد پر سارا کام۔ اب کی بار سٹپٹانے کی باری مراد کی تھی۔ یہ بالکل مت کیجیے گا، جسٹ 1 ہفتے کے لیے آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ نیکسٹ ویک میرا ارادہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ ہنی مون پہ جانے کا۔ وہ مسکرا کر بولا تو دانین کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ مراد اس کا ہاتھ تھام کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں نہ جانے کیا سرگوشی کر رہا تھا، اور دراب افندی نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، جو کہ ایک ساتھ بہت خوش اور پیارے لگ رہے تھے، اور دل ہی دل میں انہوں نے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔